हेलो, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर दीपिका, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, बट इतनी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा वो देखिए। अब आ रही है मैम? डॉक्टर दीपिका, हाँ जी मैम, मैम इको है, इको, प्लीज आप कहीं और देखो। आ रही है मैम? मैम आवाज आ रही है पर इको के साथ। अब आ रही है मैम? डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर दीपिका, मैम आ रही है आपकी आवाज अच्छी। हेलो। हेलो, हाँ जी डॉक्टर दीपिका, आप ठीक है? हाँ जी मैम, अब ठीक है बिल्कुल। डॉक्टर सोनी, हेलो मैम। हाँ, मैं हूँ यहाँ। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्लाइड्स देख लीजिए मैम एक बारी। हाँ, मैं करती हूँ शेयर। हो रही है मैम शेयर। ओके। डॉक्टर मीनाक्षी, shall we start? डॉक्टर दीपिका, गुड मॉर्निंग हाँ डॉक्टर जी, सोनी। गुड मॉर्निंग मैडम। स्टार्ट करें मैम? हाँ जी, हाँ जी। Good morning and a warm welcome to you all. Today, I feel immense proud. Good while morning, hosting our- good morning, Deepika ma'am. Your voice is very much low, not audible. Okay. डॉक्टर दीपिका, आप ठीक है? डॉक्टर दीपिका मिन्हास, मैम अब आ रही है आवाज प्रॉपरली? हाँ जी आ रही है डॉक्टर दीपिका, आपकी आवाज आ। ओके ओके मैम, आ रही है मैम, आ रही है, अभी आ रही है। ठीक है मैम। Good morning and a warm welcome to you all. Today, I feel an immense proud while hosting a day of unstoppable webinar, Ayush Vibodhini. I, Dr. Deepika Bhandari, working as Assistant Professor in Srimati Urmila Devi Ayurvedic College of Medical Sciences and Hospital. First of all, I would like to thank our respected chairman, Sir, Engineer Amarjeet Singh Walia, for supporting and encouraging us to go ahead with this webinar series. I would like to thank our respected principal, ma'am, Dr. Meenakshi Nath, for her continuous support.
And now, I would like to thank our Vice Principal, Dr. Mridu Sharma, for her enthusiastic approach towards the series. Being the head coordinator of Ayush Vibodhini, I am also thankful to all my faculty members who were constantly supporting me all the time. Last but not the least, I welcome our affable delegates. Now, I request our respected principal, ma'am, Dr. Meenakshi Nath, for her blessings and her words of wisdom. I personally thanks, ma'am, for giving me this wonderful opportunity. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Deepika. A very pleasant and cheerful morning to you all. And once again, I wholeheartedly welcome you all to this webinar series. It is really a joy to share this Ayurveda Vibodhini platform with you all every day. And this joy manifolds when a guest speaker belongs to my mother institute, that is Rajiv Gandhi Government Postgraduate Ayurvedic Institute, Paprola. So today, I welcome Dr. Soni Kapil. She is an associate professor in the Department of Prasuti Tantra and Istri Rog, and she has added glory to the Department of Istri and Prasuti Tantra in the above said college. Her academic and clinical dedication towards the subject has brought her laurels and made us proud. She is an ideal teacher, a sweet mother, a loving daughter, a true better half, and also a versatile performer. She is at par with her surgical skills and also her dancing skills. I couldn't stop saying, as being her junior, I know her so well. So I wholeheartedly thank you, Dr. Soni, and welcome you again for accepting our invitation. And I think today's lecture of yours will be quite helpful for us, as a stricture is a very common problem which is dealt in day-to-day practice. So I am waiting for your knowledgeable lecture. And before handing over to Dr. Deepika, I will wish Happy Independence Day to all of you. Thank you, Dr. Deepika. You may carry it forward now. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you. Now, I welcome our keynote speaker of the day and a biggest and a bright star of Ayurveda field, Dr. Soni Kapil. She is Associate Professor in PG Department of Prasuti Tantra and Stri Rog at Rajiv Gandhi Government PG Ayurveda College, Paprola. My heartfelt thanks goes to you, ma'am, to accept our invitation on a single phone call and in such a short notice. She is quite hardworking and she completed her UG from RG Government PG Ayurvedic College, Paprola, and started her career as AMO in 1989. Then she became topper of PG entrance in 2004 and completed her PG in Prasuti Tantra and Stri Rog at Rajiv Gandhi PG Ayurvedic College, Paprola. And after completing her PG in 2008, she joined RGG PG Ayurvedic College, Paprola. She completed her PhD from Avdesh Pratap Singh University, Rewa, Madhya Pradesh, and presently working as Associate Professor in PG Department of Prasuti Tantra and Stri Rog. She had total clinical and research experience of 21 years. She conducted more than 2,000 deliveries, C-sections, and other surgical procedures, she worked in various projects of Ministry of Ayush. She is expert in doing Uttarbasti, Pichudhavan, and Panchkarma related procedures in relation to the Prasuti and Stri Rog. Other than that, she is associated with many of the social organizations. She published many of the articles in the reputed journals, and with this, her book is under the publication also. She worked as UG, PG examiner, and worked as expert of selection committee of post of the lecturer. She delivered lectures and as resource person in many of the national and international CMEs, workshops, and conferences. Thank you, ma'am, for giving us a privilege to listen to your views. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Deepika. At first, I want to thank extend my thanks to Principal Dr. Meenakshi ma'am for her over-enthusiastic and kind appreciation of mine. She is quite closely associated with me
That is the gesture that she showed in her note. So thank you so much, Dr. Meenakshi. And I also want to thank the respected chairman of your college, Engineer Amarjeet Singh, and Vice Principal Dr. Mridu for negotiating with me for this lecture series. Thank you all. So over to the topic now. I think you can see my presentation. Is it sharing, Yes, Dr. Deepika? Yes, ma'am. Shall I continue? Yes, ma'am. Okay. So today's topic is अस्रिक दर. मैं आज आपके साथ आयुर्वेद का इसका जो पार्ट है उसे ज्यादा एम्फेसिस देके शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि एक ये ऐसी डिजीज है जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन आयुर्वेद में इसको समझना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है. तो बहुत सारे यूजी पीजी स्टूडेंट्स जुड़े हैं मुझे जैसा बताया गया इस वेबिनार में, तो दोनों का ही पक्ष देखते हुए कि जो थोड़ा यूजी के स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाए और पीजी वाले भी इससे कुछ नए चीज सीख सकें, उस हिसाब से मैंने ये टॉपिक बनाया है. और मुझे लगता है मीडियम में मिक्स ही रखूंगी बोलने का, कम्युनिकेशन का, क्योंकि टॉपिक आयुर्वेद का है तो वो संस्कृत श्लोक हैं, वो ऐसे अप्रोच ज़्यादा ठीक रहती है अपनी लैंग्वेज में बोलने से. सो सबसे पहले अस्रिक दर है क्या, इसकी क्या निरुक्ति है, क्या डेफिनेशन है, आयुर्वेद संहिताओं में इसका कैसे वर्णन किया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो इसकी निरुक्ति बताई है, रजः प्रदीर्यते यस्मात् प्रद्रस्तेन सस्मिता, चरक चिकित्सा स्थान 30 में इसका वर्णन है और योनि व्यापक के साथ ही इसका वर्णन किया गया है. जिस व्याधि में रज का प्रदीरण होता है उसे प्रदर कहते हैं. चक्रपाणी टीकाकार इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, प्रदीर्यते इति प्रदरा विस्तारितो भवति, जिसमें प्रदीरण हो उसे प्रदर कहेंगे. और प्रदीरण का मतलब क्या है कि विस्तार होना. अस्रिक दीर्यते यस्मिन् इति अस्रिक दरा, इसमें अस्रिक या रज का दीरण या विस्तार होने के कारण इसे अस्रिक दर कहा गया है. अस्रिक दीर्यते चवते यस्मिन् नित्य अस्रिक दर, माधव निधान मधुकोश टीकाकार भी ऐसा ही लिखते हैं, जिसमें अस्रिक का दीरण या विस्तार होता है और जिसमें बहुत अधिक च्यवन होता है, जिसमें बहुत अधिक रक्त गिरता है, उसे अस्रिक दर कहा गया है. सुश्रुत शारीर स्थान 2 में जो वर्णन दिया गया है वो आर्तव दृष्टि के बाद अस्रिक दर का वर्णन बताया है उन्होंने, और उन्होंने इसके जो साइन सिम्टम्स हैं बड़े अच्छे डिटेल में बताए हैं. तदेव अति प्रसंगेन प्रवृत्तम अनृताप अपि, जो कि अति मात्रा में जो प्रदीरण होगा अस्रिक का, और वो ऋतु के अलावा भी उसका प्रदीरण होगा. प्रवृत्तम अनृतावती, उसको प्रवृत्त होगा ऋतु के अलावा भी, ऋतु काल में तो प्रवृत्त होता ही है जो रज, उसके अलावा होगा. अस्रिक दरम विजानियात अतो अन्यत रक्त लक्षणा, उसे हम अस्रिक दर कहेंगे, और जो कि रक्त के या शुद्ध रक्त के लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाला होगा. अस्रिक दरो भवेत सर्वा सा अंग मर्दा संवेदना, अस्रिक दर हम उसे कहेंगे जिसमें सारे शरीर में वेदना और अंगमर्द रहता है. ऋताव अति प्रसंगेन इति अति प्राचुर्येण, दलहन टीकाकार कहते हैं कि ऋतुकाल में जो उसका अति प्रसंग होता है, मतलब कि उसका बहुत अधिक मात्रा में स्राव होना, दीर्घ काला अनुबंधेन वा, और अधिक दिनों तक रहना. प्रवृत्तम श्रुतम, प्रवृत्तम मतलब उसका निकलना, श्रुति होना. न परम ऋतावेत्याह अनृतावपीति, उसके बाद वो कहते हैं कि वो ऋतुकाल के अतिरिक्त काल में भी उसका प्रवर्तन होता है. अनृताव अल्पम अप्य दीर्घ कालम अपि, और जब अनऋतु काल में होगा तो वो थोड़ा अल्प मात्रा में होगा और दीर्घ काल तक रहेगा. प्रवृत्तम अस्रिक दरम विजान्या, तो उसको हम अस्रिक दर बोलेंगे जिस तरह से रक्त का दीरण प्रवृत्त होगा जब रक्त. अत एतस्मात् शशासिक प्रतिमम इत्यादि वाक्य प्रतिपादित अद्रक रक्त लक्षणा, जो शशासिक प्रतिमम आदि जो शुद्ध रक्त के लक्षण बताए गए हैं, शशासिक प्रतिमम यत्तु यद्वा राक्षा रसोपमम तद आर्तवम प्रशसंति यद्वासो न विरंजेत, मतलब जो शुद्ध रक्त के लक्षण शारीर स्थान में वर्णित हैं कि वो खरगोश के रक्त के समान होगा और जो लाक्षारस के समान होगा और जो कपड़ों का विरंजन नहीं करेगा, जो
उस पे जब उसको धोएंगे तो उसका दाग निकल जाएगा। तो उन लक्षणों से अन्य लक्षणों वाला रक्त जब आएगा। अन्यत अन्यात लक्षणम, अन्य लक्षण कौन से? फेनिलम शीघ्रम अच्छम इत्यादि। फेनिलम शीघ्रम अच्छम जैसे कि वात दूषित में मिलते हैं, उसमें इत्यादि वाक्य शोणित वर्णनीय यादृश अभिहितम तादृश इत्यमर्था। कि डलहन टीकाकार ने बोला कि जो शोणित वर्णनीय अध्याय में रक्त के लक्षण बताए गए हैं वैसे लक्षण उसमें देखने को मिलेंगे। अन्य लक्षणों से हम उसे समझते हैं। अति प्रसंगेन अनितावृतौ वा तदेव असृग्धरम प्रदरम व्यापदम च रक्त योनि संज्ञा लगते। अब अष्टांग संग्रहकार कहता है कि जो अधिक मात्रा में प्रवृत्त हो, चाहे ऋतुकाल में या बिना ऋतुकाल के, उसे हम असृग्धर या प्रदर व्यापद कहेंगे या फिर उसे रक्त योनि भी कहते हैं। तो उसने इसके बहुत सारे सिनोनिम्स बता दिए, असृग्धर, प्रदर या फिर रक्त योनि। अभी हम इसे क्या लें, कुछ भी तीनों चीजों को उसने सिनोनिम्स बता दिए उसके। अब इस सब से क्या समझ आ रहा है? इससे हमें ये समझ आ रहा है कि रज का ऋतुकाल में तो अधिक मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में आना, उसको जिसको हम मेनोरेजिया कह देते हैं, और ऋतुकाल के अतिरिक्त काल में आना जिसे हम मेट्रोरेजिया कह देते हैं। ऋतुकाल के अतिरिक्त काल में डलहन टीकाकार जो बोल रहे हैं वो कम मात्रा में भी बोल रहे हैं, और जो अष्टांग संग्रहकार बोलते हैं वो अधिक मात्रा में भी बोल दे रहे हैं। तो हर तरह की एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग्स जो भी है, जो पैटर्न्स मिलते हैं हमें, जिसको हम कह देते हैं कि जैसे कि पॉलीमेनोरिया हो गया, मेनोरेजिया हो गया, मेट्रोरेजिया हो गया, वो सारे पैटर्न्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जो भी मॉडर्न में आजकल हम टर्म्स यूज करते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि रक्त योनि बोल दिया उसको, तो रक्त योनि तो योनि व्यापद है। अब वाग्भट ने उसको रक्त योनि बता दिया, तो रक्त योनि योनि व्यापद है। और जब चरक ने चिकित्सा बताई असृजा योनि व्यापद की, असृजा को उसने रक्त योनि भी बोला है कहीं कहीं जहाँ ट्रीटमेंट बताई है। तो अगर हम उसको रक्त योनि या असृजा योनि व्यापद मानते हैं तो उसके साथ ही उसने असृग्धर की चिकित्सा का वर्णन भी कर दिया। पहले उसका चिकित्सा सूत्र बताया रक्त योनि का या असृजा योनि व्यापद का, उसके बाद बोला कि असृग्धर समान उसकी चिकित्सा होगी। तो कई बार ऐसा लगता है कि वो दोनों व्याधियां क्या सेम ही है, रक्त योनि को ही हम असृग्धर कहें या अलग है असृग्धर उससे। तो उसके लिए अष्टांग संग्रह के हिंदू टीकाकार बोलते हैं कदाचित योनि रोगोक्तम अन्यतम प्रकारता, मतलब क्या हो सकता है कि वो योनि रोगों का ही एक प्रकार हो। अतएव च तेषाम विशेषे विशेषात चिकित्सम उक्तम इति, लेकिन उनसे फिर भी वह उनसे कुछ विशेष होने के कारण उसकी विशेष चिकित्सा का वर्णन किया गया है। क्योंकि उसको रक्त योनि बोला तो वो योनि रोग का प्रकार भी हो सकता है कोई, और जिसकी चिकित्सा विशेष है इसलिए उसका अलग से वर्णन किया गया है। रक्त योनि री असृग्धर संज्ञया चिकित्सा प्रस्तावे वक्तव्या तेन से प्रदरूपा। चक्रपाणी टीकाकार लिखते हैं कि रक्त योनि को ही असृग्धर संज्ञा से चिकित्सा प्रस्ताव में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसकी चिकित्सा के साथ ही असृग्धर की चिकित्सा का वर्णन है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो प्रदरूप ही है। ये तो एतद व्यापदाम प्रदरम भिन्न में मन्यन्ते, लेकिन कुछ लोग इस चीज के लिए इससे इसे भिन्न मानते हैं, ऐसा नहीं कहते कि वो रक्त योनि कोई असृग्धर मान ले। ते प्रदर चिकित्सार्थम प्रकरणानंतम अत्र अध्याय पठिष्यन्ति, तो प्रदर चिकित्सा के अंदर जो अलग प्रकरण में असृग्धर का वर्णन है वो उसको पढ़ें, ऐसा बोला उन्होंने। एक जगह और चरक चिकित्सा स्थान में चक्रपाणी टीकाकार लिखते हैं यह पूर्व मुक्ता प्रदर इत्यादि उपद्रव रूपतया पूर्व मुक्ता प्रदर इति वदन्ति। जब संप्राप्ति का वर्णन आता है चिकित्सा के बाद, जब संप्राप्ति और उसके भेदों का वर्णन बाद में किया गया है असृग्धर का चिकित्सा स्थान में, तो पूर्व मुक्त प्रदर की बात की गई है। तो कई बार इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ले लिया जाता है कि जो पहले प्रदर या रक्त योनि जो बताया गया है उसी की बात हो रही है, लेकिन इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया कि ये रक्त योनि या सृजा योनि व्यापक की बात नहीं है। पूर्व मुक्ता प्रदर इत्यादि उपद्रव रूपतया पूर्व मुक्ता, सभी योनि व्यापदों के उपद्रव के रूप में भी प्रदर का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो पूर्व मुक्तव की बात हो रही है वो उस पहले के कहे हुए प्रदर की बात हो रही है जो कि योनि व्यापदों का उपद्रव है। किंतु रक्त योनि चिकित्सते असृग्धर संज्ञे रक्त योनि कथने निर्दिष्ट दोष भेदेन च। फिर लेकिन ऐसा भी है कि रक्त योनि की चिकित्सा में असृग्धर संज्ञा से रक्त योनि को ही कहते हुए कि रक्त योनि में भी इस चिकित्सा का प्रयोग करें, उसको दोष भेद के साथ बताया गया है। तत्रैव रक्त योनि असृग्धर रूपया व्याकृता तैने पुनर्असृग्धर लक्षणाभिधानम पूर्व टीकाकृतम सम्मतम।
तो उन्होंने कहा है कि ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि वो रक्त योनि का ही असरिग्ध रूप है, उसी को ही व्यापक रूप है उसका, ऐसा बोला है कि ऐसा कुछ पूर्व के टीकाकार कहते हैं। ये अप्यो ग्रंथम पठन, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर वर्णन किया। ते तस्य वाय प्रभेदा प्रवंचो वाभी इति वर्णयन्ति। तो अगर वो उन लोगों का मत हम माने तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये उसी के फर्दर भेद हैं, उसी को विस्तार में वर्णन किया गया है रक्त योनि को ही। वयम तो भूरिश पुस्तकेष्वम पाठ दर्शनादास्य व्याख्यानम कुर्मः। मैंने बहुत सारी पुस्तकों में ऐसा पाठ देखा, इसलिए इसका यहाँ पर व्याख्या कर दी गई है। तो इससे यही बताया गया है कि चक्रपाणी टीकाकार कहते हैं कि कुछ लोग जो पहले थे वो इसको रक्त योनि को ही असरिग्धर रूप मानते थे, असरिग्धर का जो वर्णन है वो रक्त योनि के रूप में ही है, लेकिन वो क्लियरली अपनी तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है, चरक में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि रक्त योनि ही असरिग्धर है। और असरिग्धर का वर्णन कहाँ आता है? योनि व्यापक में आता है। सशब्द रूप फेन तनु रूप शार्तवा एति अमृतावपि अपि भूतार्थवम भवति। चक्रपाणी टीकाकार जब वातज योनि व्यापक के ऊपर व्याख्या करते हैं या अन्य योनि व्यापक पे, तो लिखते हैं कि इन लक्षणों के साथ जब ऋतुकाल के अतिरिक्त काल में भी बहुत अधिक मात्रा में रक्त का स्राव हो तो उसे हम वातिक प्रदर कहेंगे, योनि व्यापक, वातिक प्रदर रूप योनि व्यापक कहेंगे। एवं में पैतृक श्लेष्मिक सन्निपातिक योनि व्यापदम अपि पैतृक कफ सन्निपातिक प्रदरत्वम वर्णयन्ति। इसी प्रकार से पैतृक श्लेष्मिक सन्निपातिक योनि व्यापक को भी क्रमशः प्रदर कहा जा सकता है। गुलमाश प्रदरितांश वातद यश अतिपीड़नम, ये जो है चरक चिकित्सा स्थान में जहां पर योनि व्यापकों के उपद्रवों के वर्णन किया है उसमें से ये श्लोक उठाया गया है कि इसमें प्रदर का वर्णन किया है कि वो इनमें उपद्रवों में होता है योनि व्यापक के। तो हम इसको ये भी समझ सकते हैं क्योंकि वातिक पैतिक श्लेष्मिक सन्निपातिक योनि व्यापक के अपने अपने लक्षण बताए गए हैं। अगर वो व्याधि जीर्णावस्था में चली जाती है या बहुत ज्यादा उसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में अगर योनि से अत्यधिक मात्रा में रक्त का स्राव होगा तो उसको हम प्रदर रूप भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उन योनि व्यापक का उपद्रव जो है वो प्रदर है। अब हम संप्राप्ति पे आए तो लिंगम पित्तावृते अपाने रजस अतिवर्तनम। चरक चिकित्सा स्थान में लिखा है कि पित्तावृत अपान का लक्षण ये है कि रक्त का अत्यधिक या रज का अधिक श्रवण होता है। ततः शोणित जा रोगा रक्त मेहज प्रद्रोह, इसको शोणित रोग भी माना है, मतलब दुष्ट रक्त से उत्पन्न रोग भी माना है। सुश्रुत ने भी ऐसे ही बोला है कि ये रक्त दोषज है, रक्त दोषज है, सूत्र स्थान में भी इसका वर्णन है, तो इसको रक्त दोष भी माना गया है। निदान की बात करें असरिग्धर निदान की, विरुद्ध मध्य अध्यक्षानाद अजीर्णाद गर्भ प्रपाताद अथि में मैथुनाच। तो इसके निदानों का जो बहुत डिस्क्रिप्टिव डिटेल में जो वर्णन है वो माधव निदान भाव प्रकाश योग रत्नाकर में है, जिसमें विरुद्ध आहार, मद्य का सेवन, अध्यशन, अजीर्ण, गर्भ प्रपात, अति मैथुन, यान अथव यान सवारी करना, पैदल चलना, शोक अधिक करना, अति कर्षणाज बहुत अधिक कर्षण करना, भारा अभिघातात बहुत अधिक भार उठाना, या फिर दिन में सोना, ये लक्षण बताए गए हैं। इसमें आहारज और विहारज दोनों लक्षण इसमें कवर हो जाते हैं, जिसमें आहारज में विरुद्ध मध्य अध्यशनाद आ जाएगा। कुछ जो है गर्भपात और मैथुन है, ये क्या करते हैं, ये गर्भपात के बाद कई बार इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, अत्यधिक मैथुन से भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं, या फिर लोकल एरिया में इन्फ्लेमेशन रहती है और कंजेशन रहती है जो कि ब्लीडिंग या जो है नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को कर सकती है। अधिक सवारी, अद्भशोक, ये भी एक्टिव या पैसिव कंजेशन करती हैं। ये सब चीजें भार का अधिक बढ़ना ये पेल्विक में कंजेशन क्रिएट करेंगी, जिससे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो जाएगी। दिन में सोना ये भी जो है कफ का वर्धन करता है। तो तीनों दोषों के प्रकोपक आहार विहार का वर्णन भी इसमें आ जाता है और बहुत सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्लियर होते हैं। अब जो चरक ने संप्राप्ति बोली है उसमें क्या कारण बताए हैं, यह पूर्व मुक्तम प्रदरा श्रेणु हेत्वादि वस्तुता, या यहाँ पर उसने बोल दिया कि पूर्व में युक्त प्रदर की बात कर रहे हैं। तो वो पूर्व में युक्त प्रदर कौन सा है, वो योनि व्यापक के उपद्रव स्वरूप प्रदर की बात की, जो टीकाकार ने क्लियर कर दिया। यह अत्यर्थम सेवते नारी लवणान अम्ल गुरुनीचा, जब अधिक मात्रा में नारी लवण अम्ल गुरु आहार का सेवन करती है। कटुन्यत विदाहिनी सिनिग्धानी पिशितानी चा, कटु और विदाही स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करती है। पिशितानी च ग्राम्य औदकानी मेद्यानी, ग्राम्य औदक और मेद्य मांस रस का सेवन करती है। कृष्णा, पायस, दधी,
शुक्त, मस्तु, सुरा आदि का भोजन करती है तो उसके कारण वायु कुपित हो जाती है। अब इसमें ये लगता है कंफ्यूजन कि इसमें वायु के प्रकोप के लक्षण तो के कारण तो ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, ज्यादा पित्त प्रकोप कारण आ रहे हैं। तो उसका आंसर हम पहले ले चुके हैं, क्योंकि इसमें पित्त से आवृत अपान वायु के कारण जो है स्निग्धर होता है। तो पित्त प्रकोपक कारणों का सेवन करने पर जो पित्त बढ़कर वायु का आवरण करेगा, जिसकी वजह से वायु का प्रकोप होगा। शायद इसीलिए इसके कारणों में चरक संहिताकार ने ये पहले बता दिया था कि पित्त के आवरण से होता है, तो इसलिए लक्षण यहाँ पर पित्त के ही लिए हैं ज्यादा, कारण जो बोने हैं वो पित्त के माने हैं ज्यादा। अब ये जो बढ़ी हुई वायु वो क्या करेगी, रक्तम प्रमाणम उत्क्रम्य गर्भाशयगत सिरा, रक्त के प्रमाण को बढ़ाकर उसे गर्भाशयगत सिरा में ले जाएगी। रजोवहा समाश्रित्य रक्तम आदाय तत्र जा, और वो रजोवहा धमनियों में आश्रित होकर उस बढ़े हुए रक्त को रज में मिक्स कर देगी, रज की क्वांटिटी को बढ़ा देगी, प्रमाणता उत्क्रांत कर देगी, ऐसा बोलता है टीकाकार, प्रमाणता उत्क्रांत कर देगी रज को। यस्मात् विवर्धित आशु रस भावात् विमानता, और इस वजह से जो है रज अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा क्योंकि वो रस भाव है। तस्मात् अस्रिग्धम प्राहुरे तंत्र विशारदा, इससे अस्रिग्धर कहते हैं। यदा तु तच्छोडितम दुष्ट मार्गम प्रतिपद्यते तदा स्त्रीणाम प्रतरो भवति। भेद संहिताकार कहता है कि जब शोणित दुष्ट मार्ग में चला जाता है तब स्त्री में प्रदर होता है। तो शोणित जैसे इसमें डिटेल में बताया गया कि बात बढ़ी हुई वायु है जो रक्त को लेकर दुष्ट मार्ग ही हुआ, जहां पर वो रजोवहा सिरा में चली गई और वहां पे रज के प्रमाण को बढ़ा दिया, उस रक्त को उसमें मिलाकर। संप्राप्ति दोष, इसमें वात प्रधान है अपान वायु और पित्त प्रधान त्रिदोष इसमें रहेंगे। वात पित्त प्रधान व्याधि इसको हम ज्यादा मान सकते हैं। दूसरे इसमें रस रक्त आर्तव, अग्नि जठराग्नि दर्पाग्नि दोनों का मानदेय रहेगा। अधिष्ठान गर्भाशय, स्रोतस आर्तवाही रसवाही रक्तवाही, स्रोत दृष्टि अति प्रवृत्ति, रोग मार्ग अभ्यंतर रोग मार्ग। दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग क्यूमुलेटिव संप्राप्ति। जो कुछ हमने पढ़ा उसको अगर हम सबको इकट्ठा लेकर चले तो इस तरह से संप्राप्ति इसकी बनती है कि जो भी निदान सेवन करती है स्त्री, तीद्रोष प्रकोपक निदान से सेवन ही हुआ है इसमें, तो इसमें यान अध्व शोक भार वहन ये सब वायु को प्रकोपित करते हैं। लवण अम्ल कटु विदाही भोजन शुक्त मस्तु का सेवन पित्त को और रक्त को दूषित कर देते हैं। शोणित व्याधि माना है इसको, शोणित का भी इसमें प्रकोप रहता है। गुरु स्निग्ध ग्राम्य औदक मांस रस का सेवन कफ को प्रकोपित करता है। ये सब चीजें क्या करती हैं, अग्नि मानदेय करेंगी और विकृत रस धातु निर्माण होगी। विकृत रस धातु होगी तो विकृत आर्तव उपधातु का भी निर्माण होगा और रक्त भी दूषित हो जाएगा क्योंकि रस से रक्त की उत्पत्ति होती है। तो ये सब चीजें पित्त और रक्त बढ़कर जो है, क्योंकि समान धर्मी हैं दोनों, यूट्राइन कंजेशन करेंगे। रक्तम प्रमाणम उत्क्रम्य गर्भाशयगता सिरा, जिसको हम बोल रहे हैं यूट्राइन कंजेशन या इंक्रीज यूट्राइन सर्कुलेशन कॉज करेंगे। और वात जो प्रकोपित होती है वो पित्त के आवरण से प्रकोपित होगी। तो वायु जो है उस रक्त को लेकर वहां धमनियों में जाएगी, यूट्राइन कंजेशन करेगी। नाउ इफेक्ट ऑन वेस्कुलर अपरेटस, रजोवाहा समाश्रित रक्तम आदाय तत्र जा। वेस्कुलर अपरेटस में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, वहां पर चेंजेस आएंगे और अस्निग्धर व्याधि की उत्पत्ति हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द टाइप्स, तो टाइप्स इसके 4 ही माने गए हैं। चरक में 4 के लक्षण बताए गए हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज। लेकिन सुश्रुत और वाग्भट ने टाइप्स का वर्णन ऐसे नहीं किया। वाग्भट ने जहाँ चिकित्सा बताई उसमें सिर्फ वात पित्त और कफ के लक्षण बता दिए। उसने रक्तयोनि के साथ इसकी चिकित्सा बोली है। रक्तयोनि का चिकित्सा सूत्र देने के बाद उसने वातज पित्तज और कफज अस्निग्धर के लक्षण बता दिए उसने, या चिकित्सा बता दी, और उसने 3 ही का वर्णन किया। लेकिन टीकाकार बोलते हैं कि शोणित वर्णनीय अध्याय में जो रक्त के लक्षण बताए गए हैं, सुश्रुत के टीकाकार दलहन बोलते हैं, तो उसके अनुसार हमें दोषों का, जो दोषों के लक्षण बताए हैं उसके अनुसार हम दोषों को देख सकते हैं उसमें। ऐसे ही अष्टांग संग्रह के इंदु टीकाकार बोलते हैं कि शिरो व्यधोक्त अध्याय में जो वर्णन है, तो वहां पर हमें द्वंद्वज रक्त दृष्टि के भी लक्षण मिलेंगे कि रक्त में जो दोष आते हैं वो द्वंद्वज का भी जो लक्षण होंगे वो वर्णन किया गया है। तो अगर इनडायरेक्ट रेफरेंस अगर हम ये लेके चले तो इसके 7 प्रकार हो जाएंगे, जिसमें कि 4 तो वातज पित्तज कफज सन्निपातज और 3 द्वंद्वज। तो
ये इनडायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्टली जो चरक में बोला गया है वो 4 ही प्रकारों का वर्णन किया गया। अब इसके जो भेद हैं अगर हम उनको लेकर चलें तो वातजस्रिक दर में जो लक्ष्य बोले हैं, फ्रोथी होता है, menstrual discharge, thin, rough, blackish or reddish, washings of flower of पलाश, पलाश के धोबन के समान, विद और विदाउट पेन रहेगा, पेन उसमें कटिवंशन में पेन मिलेगी, कार्डियक रीजन, फ्लैंक्स, बैक, पेल्विस, लोअर एरिया में पेन मिलती है, तो पेन मिलती है, तो उसको हम पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम या पेल्विक सिंपैथेटिक सिंड्रोम, या फिर हम सिंपल हम कह सकते हैं कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, क्योंकि वातज है तो वो क्या है, वात का काम है नियंता प्रणेता, सारे काम जो है शरीर के जितने भी फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट वात करती है। तो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस में अगर कोई डिसरेगुलेशन होगी तो उसके लिए भी वात जिम्मेदार होगी। तो इसमें जो लक्षण है वो मेनली यही शो कर रहे हैं कि रक्त का प्रमाण उत्क्रांत कर रही है, ऐसा उसकी संप्राप्ति में भी वातजस्रिक दर के बोलती है कि वात जो है रक्त का प्रमाण जो है वहां पर बढ़ा रहा है लोकल एरिया में, तो उसको हम मान सकते हैं कि DUP, सिंपल DUP, क्योंकि इसमें कोई ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन इनकॉर्पोरेट होती दिखती नहीं है। और पित्तजस्रिक दर में ब्लू, येलो, ब्लैकिश कलर का कलर इसमें मेंशन किया, और उष्ण होगा, अधिक मात्रा में होगा, और उसके साथ साथ उसमें दाह होगा, लालिमा होगी, थर्स्ट, प्यास बहुत अधिक मिलेगी पेशेंट में, मेंटल कंफ्यूजन, फीवर, गिडीनेस। अब यहाँ पर जो लक्षण है बर्निंग सेंसेशन, फीवर, गिडीनेस, ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट कर रहा है कि लोकल पेल्विक रीजन में कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वहां पर पेल्विक कंजेशन बढ़ रहा है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ रही हैं। तो मेनोमेट्रोरेजिया काज द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, और ज्यादा क्वांटिटी में इसमें रक्त का स्राव होता है। कफजस्ट्रिक दर में बोला है कि वो पिचिल होगा, पेल होगा, हैवी अनकोटस, कोल्ड, थिक, मिक्स्ड विद म्यूकस, म्यूकस या कफ से मिक्स होगा, उसमें डिस्चार्ज होगी तो कम पीड़ा होगी, पीड़ा उसमें माइल्ड पेन बताई है, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, नॉजिया, डिस्निया एंड कफ। अब जब इसमें सिम्टम डिस्निया और कफ के आ गए, नॉजिया, एनोरेक्सिया आ गया, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ट्यूबरकुलर कंडीशन की तरफ ज्यादा इंडिकेट कर रहा है। तो ट्यूबरकुलर कंडीशन इसमें अर्ली स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और ओवरऑल भी हम देखें तो वातज जो है वो बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, पित्तज में इन्फ्लेमेशन, और कफज जो है वो क्रॉनिक कंडीशंस को, जिसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, उन कंडीशंस को इंडिकेट करता है। अब सन्निपातजस्रिक दर किसे कहेंगे, जब इसमें जो लक्षण बताए गए वो सीवियरली इल एनीमिक वुमन होगी और जिसमें सभी दोषों को प्रोवोकेट करने वाले आहार विहार का सेवन वो करेगी, और वायु बढ़कर कफ को भी बढ़ाती है और उससे उसका विदग्ध कर देती है कफ को, और वो विदग्ध किससे होता है, पित्त की ऊष्मा से। उसके कारण उसमें फाउल स्मेलिंग, स्लाइमी, येलो और अपोजिट प्रॉपर्टीज के डिस्चार्जेस, इसमें मेनली डिस्चार्जेस के बारे में वर्णन किया गया, विजाइनल पैसेज से जो निकलते हैं, और बेद के समान, वसा के समान, धृत के समान, और मसल फैट जिसको कह सकते हैं के समान, मांस के